So we have studied that the blood is responsible for the transport of the materials. So blood is mainly divided into two main components, plasma and the blood cells. So the liquid part of the pale transparent yellow part of the blood is known as the plasma, which contains different kinds of antibodies and different proteins. Okay, so the blood cells of different kinds, these are RBCs, WBCs and platelets. So RBCs are the red blood cells, which are mainly responsible to give the, which contains the pigment hemoglobin and are responsible for the red color of the blood. WBCs are the scavengers of the body, or they help in the defense mechanism of the body to generate the immune system in the body. And platelets, when they there is any kind of injury in the body, then platelets are released from the bloodstream and they help in the blood clotting and they form the clot. So these are the components of the blood or the composition of the blood. So next is the blood grouping. Blood groups. So our today's topic is the blood groups. So as we know, चार blood groups हैं. Blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. Blood group A, blood group B, blood group AB and O. इनमें से हम O जो है हम उसे मानते हैं यूनिवर्सल डोनर. O is known as universal donor. And AB is known as universal recipient. That means जो AB है, it can receive any blood group. Okay, ये कोई भी blood group जो है वो receive कर सकता है AB. और जो O है वो किसी भी blood group को अपना blood donate कर सकता है. Recipient, donor. So blood group depend किस पे करता है? तीन main factors पे depend करता है. The antigen present on the surface of the RBCs. Okay, so there are some certain kinds of proteins which are present on the surface of the RBCs. और हम बोलते हैं RH positive factor and RH. जिनमें RH positive factors present होता है, they are RH positive, और जिनमें RH factor नहीं होता, absent होता, they are RH negative. RH is known as rhesus factor. Okay. सो जो RH फैक्टर है वो आपका डिसाइड करता है आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या फिर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा. दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर. ओके, एंड A होगा, B होगा या AB होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द RBCs. इफ दिस इज योर RBC सेल, then which kind of antigen is present on the surface? These antigens are basically the lipids or the proteins. Okay, ये होते क्या हैं? Basically आपके lipids होते हैं, proteins होते हैं. So किस तरह के आपके antigens present हैं on the surface of the RBC, that will decide the blood group of the organism. Okay, A होगा, B होगा या AB होगा, O होगा, वो depend करेगा आपका presence of the antigens. And positive होगा या negative होगा, that will depend upon the presence of the RH factor. Okay. So, अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपके जो सरफेस पे एंटीजेंस होंगे वो आपके प्रेजेंट होंगे A एंटीजेंस. These are the antigens present on the surface. A ब्लड ग्रुप के केस में आपके होंगे एंटीजन A. और अगर A एंटीजन है दैट विल जनरेट द एंटीबॉडीज B. अगर A ब्लड ग्रुप का किसी और ब्लड ग्रुप वाले ऑर्गेनिज्म में एंटर हो जाते हैं सेल्स, तो वहां पे वो कौन सी एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे? B. ओके, ब्लड ग्रुप अगर B है तो उसके सरफेस पे आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे B. और वो एंटीबॉडीज कौन सी जनरेट? दीज आर योर एंटीबॉडीज. वो एंटीबॉडीज जनरेट करवाएंगे A. ओके, अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है
तो इसमें आपके दोनों तरह के एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, ए भी और बी भी होगा प्रेजेंट, और ये एंटीबॉडीज, कोई भी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्प नहीं होगी। ओके, और अगर ओ होगा तो इसमें आपका कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो नो एंटीजन, इसमें आपका कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। सो ओ के ऊपर आपका कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर है बिकॉज इसके ऊपर कोई भी आपका एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर ये ब्लड सेल्स एंटर भी कर जाएंगे तो वहां पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये यूनिवर्सल डोनर की तरह आपके एक्ट करते हैं। ए बी में क्या होगा, आपके दोनों तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट जाएगा तो ये क्या करेगा, आपकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देगा। चाहे ए वाले को डोनेट करें तब भी एंटीबॉडीज बनेंगी, चाहे बी वाले को डोनेट करें तब भी एंटीबॉडीज बनेंगी, क्योंकि इसके ऊपर दोनों तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई ये यूनिवर्सल डोनर तो नहीं है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये रिसीव कर सकता है ब्लड। ठीक है, अगर ये ए वाले का ब्लड ग्रुप रिसीव कर रहा है तो इसके अंदर पहले से ए वाला बी वाला एंटीजन है, ये सेल्फ रिकॉग्नाइज करेगा, बी वाले को करेगा तब भी बी वाले सेल्स है सेल्फ रिकॉग्नाइज करेगा, और ओ वाले को तो एज यूजुअल इसने एक्सेप्ट कर ही लेना बिकॉज वहां पे आपकी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई जो आपका ए ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट की तरह एक्ट करता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो आपका यूनिवर्सल डोनर की तरह एक्ट करता है। So these are the different blood groups. Okay. So यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है then you can ask me by raising your hands. So these are the different blood groups in case of humans, blood group A, blood group B and blood group C. अगर आपका RH factor positive है that means A positive, आपका RH factor positive है। अगर आपका RH फैक्टर नेगेटिव है, एब्सेंट है, देन योर ब्लड ग्रुप इज A नेगेटिव। सो यहाँ पे आपका एक केस आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आपका ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड अगर आपकी मदर RH पॉजिटिव है एंड आपका जो चाइल्ड है वो RH नेगेटिव है, या आप मदर RH नेगेटिव है एंड डेवलपिंग चाइल्ड जो है वो RH पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होता है, if the mother is RH negative and child is, जो आपका developing child है वो आपका RH पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, जब दोनों तरह के सेल्स की आपस में इंटरेक्शन होगी वहां पे क्या होगा, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज आपकी चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाती है, चाइल्ड की डेथ स्टार्ट होती है, उसके ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज जो मदर की बॉडी है दैट हैज स्टार्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज फॉर द RH पॉजिटिव फैक्टर। ठीक है, तो जब इनकी इंटरेक्शन होती है देन एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो इस केस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, मदर को ड्रग्स देते हैं, डिफरेंट केमिकल्स और ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है, सो दैट जो आपका फर्स्ट केस होता है RH पॉजिटिव का वो आपका चाइल्ड मोस्टली सर्वाइव कर जाता है, बिकॉज वी नो इन केस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड, तो उसमें कभी भी जो भी आपकी न्यूट्रिएंट या मटेरियल का ट्रांसफर होता है दैट इज थ्रू द डिफ्यूजन, वो सारा ट्रांसफर आपका डिफ्यूजन के थ्रू होता है, तो ब्लड सेल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, सो दैट्स वाई आपका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो तो सर्वाइव कर जाता है, बट जब आपके फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होती है दैट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब मदर के साथ पॉजिटिव वाले के ब्लड सेल्स कांटेक्ट में आते हैं तो इट स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो अब जब सेकंड चाइल्ड का केस आएगा, जब सेकंड टाइम केस होगा, सेकंड जनरेशन होगी, अगर वो चाइल्ड भी आपका RH पॉजिटिव है तो पहले से एंटीबॉडीज हैं वो उसकी ग्रोथ को होने नहीं देंगे। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस।
blastocyst fetalis. This is a disease जिसमें there is destruction of the RBCs of the developing child because of the production of antibodies by the RBCs of the mother. Okay, तो इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड है वो आपका RH पॉजिटिव है, मदर जो है वो RH नेगेटिव है, इंटरेक्शन हुई तो मदर के ब्लड ने क्या किया, एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर दी एंड देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द RBCs इन द न्यू डेवलपिंग चाइल्ड. ओके, तो उसे हम सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ब्लड ग्रुप्स इन केस ऑफ द ह्यूमंस. So different blood groups in case of humans are blood group A, blood group B and the blood group AB and O. जिसमें से हम AB बोलते हैं universal recipient and your O group is the universal donor. Okay. और आपका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा that depends upon the antigen present on the or the kinds of the proteins present on the surface of the RBCs. Okay. So next is the circulation. Basically, what is circulation? The whole system which helps in the which helps in the flow of the blood in the body is known as the circulatory system or the circulation. Circulatory system. So जो circulatory system है वो भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, open circulatory system and closed circulatory system. So open circulatory system में क्या होता है, जो blood है that flows in the directly to the different organs. उसमें क्या होता है, जो आपके tissues या organs है they are directly bathed in the blood. Blood cavity present है, organs present है और blood is जो आपका blood है वो सीधा directly cavity में move कर रहा है. और in case of the closed system proper vessels हैं, ducts हैं, proper arteries, veins present हैं जिसमें आपका ब्लड फ्लो करता है. और इस केस में क्या होता है, आपका प्रेशर हाई होता है ब्लड का बिकॉज ब्लड इज फ्लोइंग इन द प्रॉपर डक्ट्स और इन द प्रॉपर वेसल्स नॉन एज द ब्लड वेसल्स. ओपन सिस्टम में क्या होता है, ब्लड का प्रेशर लो होता है बिकॉज ओपनली ब्लड मूव कर रहा है, वहाँ पे कोई वेसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है. सो मोस्टली लोअर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें आपका ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है. और इन केस एनालिट्स, मोस्टली एनालिट्स और वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स आप बोल सकते हो, उनमें आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. सो इन केस ऑफ व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के आपके डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, आर्टरी, ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में आपकी आ जाती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड द मेन organ that helps in the circulation of the blood or the pumping of the blood is the heart. So circulatory system में आपके organs आते हैं, मेन आपका आता है हार्ट, arteries and veins. Okay, so heart is the main organ or the main circulatory organs that helps in the circulation of the heart and which is responsible for the circulation of the heart or the pumping of the heart or pumping of the blood. So heart in case of humans is 4 chamber. In case of mammals, as we know, starting from the fishes में आपका heart जो that is 2 chambered, और amphibians में आपका heart है 3 chambered. In case of reptiles, heart is there is presence of 2 atrium are present and 1 partially divided ventricles are present, except in case of crocodiles. Crocodiles में आपके fully developed 4 chambers होते हैं, and in case of humans or the mammals, heart is 4 chambered. That means 2 atria and 2 ventricles. So as we know, the outer membrane of the outer layer of the heart is known as a pericardial pericardium. The layers of the heart, outer pericardium and the inner pericardium. There is a cavity or the space in between the 2 layers known as the pericardial cavity or the space. Okay, so blood में सबसे ज़्यादा because it is responsible for the pumping of heart, तो rich blood supply obviously वहाँ पे rich blood supply होगी.
two arteries are present and the two ventricles are present. So blood is mainly divided into the two portions, that is the right portion and the left portion. Right portion में आपका right atrium and the right ventricle, left portion में आ जाता है आपका left ventricle and the left atrium and the left ventricle. So the main purpose of the blood is to separate the deoxygenated blood and the oxygenated blood. So हम बोलते हैं कि blood की double circulation in case of mammals. Double circulation means एक साइकिल में जब आपका एक कार्डियक साइकिल चल रहा होता है आपका 2 times blood flow होता है, ठीक है, 2 times आपका जो blood है वो enter होता है in the atrium. ओके, एक बार आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक बार आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. सो उसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. जो आपका ब्लड है वो दो साइकिल्स में, दो सर्कुलेशंस में एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, दैट इज नोन एज अ डबल सर्कुलेशन. सो जो डबल सर्कुलेशन है दैट इज प्रेजेंट इन द हायर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मैमल्स और अदर हायर एनिमल्स, बिकॉज उनमें क्या है, आपकी एनर्जी की डिमांड्स ज्यादा हाई है. टू फुलफिल द हाई एनर्जी डिमांड्स डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट. मोर प्रॉपर जो आपकी सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज मेंटेन्ड बाय द डबल सर्कुलेशन. सो नेक्स्ट इज द So this is your right atrium, right ventricle, left ventricle, and the left atrium. Okay, so this is the right portion and this is the left portion. The right portion of the blood contains oxygenated blood, deoxygenated blood, and the left portion contains oxygenated blood. So as we know, the walls of the ventricles are very much thicker than the atrium. जो ventricles की walls हैं वो आपकी हमेशा atrium की wall से thicker होती है, because ventricle has to pump the blood to the farther regions of the body. Ventricles ने different, जो ventricles ने blood send करना है, it will send the blood to the different parts of the body. तो उसने blood जो है वो दूर तक send करना है, जो आपके farthest point पे body के organs present है वहां तक send करना है. So that's why उसकी वॉल जो है वो ज्यादा थिक है, ज्यादा मस्कुलर है. ओके, तो राइट आर्टियम ने तो ब्लड सेंड करना है टू द वेंट्रिकल्स, तो दैट्स वाई उसकी जो आपकी लाइनिंग है, जो वॉल्स है वो थोड़ी थिन है एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल्स. सो दिस इज योर ट्राइकस्पिड वॉल, tricuspid and bicuspid wall. Okay, so यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है aorta, and aorta is further divided into 3 main branches. Okay, this is your superior vena cava, inferior vena cava, is the pulmonary artery, here is the pulmonary vein, okay. So this is the structure of the heart. Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. So सबसे पहले आपका जो superior vena cava, it collects the blood from the upper region of the body. Okay,
So the upper regions जो भी आपका deoxygenated blood है, that is collected by the superior vena cava and it pours the deoxygenated blood to the left right atrium. यहाँ पे साइन करना 10th में जाना आपने 0:11:25 के बाद 10th कौन सी वाली है So from the left atrium जब आपके tricuspid valves open होंगे it will send blood to the right ventricle. So right ventricles में यहाँ से आपका जो inferior vena cava है it inferior vena cava and superior vena cava they pour the blood to the right atrium deoxygenated blood जो inferior vena cava that collects the deoxygenated blood from the lower region of the body ठीक है तो आपका जितना भी deoxygenated blood है that enters into the right atrium वहां से गया लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जाएगा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स पल्मोनरी आर्टरी आपका ब्लड लेके जाएगी टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन और द गैसियस एक्सचेंज वहां से आपका पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे लेके आएगी तो लेफ्ट पोर्शन में आपका जो सारा ब्लड है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन Okay. After the opening of the bicuspid valve from the left atrium, the blood will move to the left ventricle and from the left ventricle through the aorta, the blood, oxygenated blood is distributed to the different parts of the body. So this is the functioning of the heart. Okay. तो आपके different valves present होते हैं to check the backflow of the blood. Tricuspid valve, bicuspid valve. एंड आपके सेमिलूनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी आर्टिक आर्चेस की 3 लेयर्स हैं हियर द सेमिलूनर वॉल्स आर प्रेजेंट जो आपका बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को चेक करते हैं प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड एंड वो अलो करते हैं द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ओके सो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड pumping of the blood through the heart okay So यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है then you can ask me by raising your hand students. So next is the cardiac output. So basically what is the cardiac output? एक सर्कुलर में एक सर्कुलेशन में आपका कितना ब्लड पंप आउट होता है that is your cardiac output. Okay. तो 72 times 1 minute में 72 times जो आपका ब्लड है that वो पंप करता है तो 1 कार्डियक आउटपुट 1 सर्कुलेशन में मोस्टली आपका 5 लीटर ब्लड जो वो पंप आउट होता है ठीक है सो दिस इज द ब्लड सर्कुलेशन एंड व्हाट इज द कार्डियक साइकिल so we will do cardiac cycle in our next class. So this is all for today. Thank you class.